We are getting a breaking news where Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has termed the TCS Nasik case as very serious, saying the state government is taking the matter with utmost urgency. Now, speaking on the issue, Fadnavis said that an operational module was involved in the case, indicating a possible organized angle behind the incident. Now, he added that the authorities are currently probing the matter in detail and all necessary action will be taken as per the law. Now, Chief Minister's remarks come amid ongoing investigation into the TCS Nasik case, which has triggered concern in the state administration. Now, viewers, the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, has now termed the TCS Nasik case as very serious, saying the state government is taking the matter with utmost urgency. And speaking on the issue, Fadnavis said that an operational module was involved in the case, indicating a possible organized angle behind the incident. And he added that the authorities are currently probing the matter in detail and all necessary action will be taken as per law. And Chief Minister's remark come amid ongoing investigation into the TCS Nasik case, which has triggered concern in the state administration. Now, viewers, Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, had said earlier that the government is investigating the complaints of sexual harassment by 8 employees against their seniors in TCS. And he said that we are investigating the matter in details and the accused will not be spared. And the latest coming in from Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, where he has termed the TCS Nasik case as very serious, saying the state government is taking the matter with utmost urgency. And speaking on the issue, Fadnavis has said that an operational module was involved in the case, indicating a possible organized angle behind the incident. And he added that the authorities are currently probing the matter in details and all necessary action will be taken as per the law. And the Chief Minister's remark comes amid ongoing investigation into the Nasik case, which has triggered concern in the state administration. Now, viewers, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis had said the government is investigating the complaints of sexual harassment by 8 employees against their seniors in Tata Consultancy Services, TCS. And he says that we are investigating the matter in details and the accused will not be spared. Now, viewers, the investigation is still going on, and the case so far is that 8 women employees at TCS have accused senior colleagues at the company's Nasik campus for sexual harassment. Now, viewers, I'm being joined by my colleague Vinod Jagdale. Now, विनोद जी, ये बड़ा स्टेटमेंट जो आ रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जो TCS नासिक का केस है ये काफ़ी सीरियस है और राज्य सरकार जो है इस मैटर को अटमोस्ट अर्जेंसी पे ले रही है। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय कलकत्ता में हैं और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव प्रचार के लिए उनका यह दौरा है। कोलकाता के एक होटल में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्हें नासिक धर्मांतरण और TCS मामले में जब पूछा गया, तब उन्होंने एक बड़ी बात वहां पर की है कि ये मामला काफ़ी गंभीर है और ये लगता है कि ये संगठित मॉड्यूल है और इसके नेटवर्क और रास्तों का पता लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। आपको पता ही होगा कि 2 दिन पहले ही इस पूरे मामले में NIA की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। नासिक पुलिस ने भी ऐसे कई अहम दस्तावेज SIT और नासिक पुलिस ने NIA को दिए हैं और NIA इस पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान से साफ हो गया है कि ये संगठित मॉड्यूल है और इसका रास्ता क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है, इसकी जांच पड़ताल अब इसमें की जा रही है। अब कई एंगल से इसकी जांच होती हुई नजर आ रही है। इसके
जो निदा खान नाम की जो आरोपी मुख्य आरोपी बताई जा रही है वो फिलहाल यहाँ पर फरार है। उसने अपना जो एक कह सकते हैं कि नासिक के जो सेशंस कोर्ट में है उसने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका गिरफ्तारी से पहले की वहाँ पर दायर कर दी है और वहाँ पर वो रिलीफ चाहती है। कल इसमें सुनवाई भी होगी। राज्य सरकार भी इस याचिका को खारिज करने के लिए पूरी प्रयास वहाँ पर करने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, मतलब ये साफ है कि राज्य सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद यहाँ के गृह मंत्री भी है स्टेट के, तो इस मामले को लेकर वो काफ़ी गंभीर है और अब जांच यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी जुड़े रहिए। नाउ व्यूअर्स, लेट कट अक्रॉस टू द रिएक्शन that Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis has said regarding the Nasik TCS case. ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली TCS जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है, किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका TCS ने ली है और TCS के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी। विनोद जी, देखिए मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि ऑपरेशनल मॉड्यूल लग रहा है कि इन्वॉल्व है, जांच एजेंसी जैसे ATS NIA इसकी जांच कर रही है और लगातार जो है देखिए ये बातें तो चल रही है, कहीं ना कहीं इसको नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के तौर से भी देखा जा रहा है। देखिए ये नासिक धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी उसी दृष्टि से उसे देखा जा रहा है। खुद आज आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो राज्य के गृह मंत्री भी है उन्होंने कलकत्ता में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मॉडल के तहत ये चल रहा था, इसके तार कहाँ तक है उसे जांचने का काम वहाँ पर चल रहा है। और उन्होंने कहा भी कि हम ज़रूरत पड़ने पर NIA की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन ये जाहिर है कि 2 दिन पहले ही NIA को डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिए गए हैं और NIA इस मामले में पूरी जांच वहाँ पर कर रही है। पूरे जो पिछले 5 से 6 साल का कंपनी का पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर देखा जा रहा है। कौन से लोग कब वहाँ पर भर्ती हुए, किसके रेफरेंस से किसने किसको भर्ती किया है, HR की भूमिका क्या है, अगर फिर जिन पर जो आरोप लगे थे कि धर्मांतरण का उनकी वहाँ पर संदिग्ध भूमिका क्या थी, आगे ये नेटवर्क कैसे काम किया, जो WhatsApp ग्रुप है उस ग्रुप में क्या चर्चा वहाँ पर हो रही थी, इस सभी प्रकार की जांच अब NIA वहाँ पर करेगा। और यहाँ पर इसके अलावा सिर्फ TCS ही नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसी कंपनियों पर शक है कि जिन्होंने इनकी फंडिंग को लेकर शक है, लेन देन को लेकर शक है, उसकी भी जांच वहाँ पर की जाएगी। ये साफ है कि आज के मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि इस केस को लेकर राज्य सरकार वहाँ पर गंभीर नजर आ रहा है। विनोद जी, देखिए अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, कुछ अहम तथ्य जो है जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं? देखिए ऐसे कई चीज़ें हैं वो जांच एजेंसियों के हाथ लगी है और ये SIT के पास है। SIT ने वो सारी चीज़ें NIA को दी है और NIA अब तक अपनी जांच यहाँ पर शुरू कर चुका है, लेकिन जांच में क्या सामने आया अब तक इसके बारे में कोई भी जानकारी सूत्रों के हवाले से या फिर आधिकारिक तौर पर NIA की तरफ से यहाँ पर जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हाँ, जांच शुरू हो चुकी है। सिर्फ TCS ही नहीं, दूसरी भी जिन कंपनियों पर शक है उनके खिलाफ भी ये जांच वहाँ पर की जा रही है। लेकिन जांच में क्या निकलकर सामने आ रहा है इसके बारे में कोई भी जानकारी अब तक यहाँ पर मिल नहीं पाई है। जी now viewers, in the TCS conversion case, the accused HR Nida Khan has now approached a Nasik court for bail and she has filed an application for anticipatory bail to avoid arrest. Now viewers, this petition has been filed in the Nasik District Sessions Court and a hearing on this petition is expected to take place tomorrow. Now Nida Khan is the only absconding female accused in this conversion case and the other 9 accused involved in cases linked to this matter are all men. Now she is reported to be the only woman who worked alongside the suspected accused at TCS.
Now, meanwhile, investigating agencies are continuously probing the case and examining its links and emerging details. And the matter is also under close legal scrutiny. Now, viewers, I'm still being joined by my colleague Vinod Jagdale. Vinod ji, जो निदा खान है एचआर, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल जो है वो मूव की है नासिक का कोर्ट में और इसकी सुनवाई जो है वो कल होगी। हालांकि अभी वो एब्सकॉन्डिंग है, तो लोकल पुलिस को अभी कुछ जानकारी मिली है उनके बारे में? देखिए, लोकल पुलिस एसआईटी की मदद से हर जगह पर जाकर, जैसे पहले खबर ये थी कि नासिक में हो सकती है, नासिक में सर्च ऑपरेशन किया गया, ठाणे के भिवंडी इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया, मुंबई के कुछ जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन निदा खान फिलहाल वहां पर वो फरार बताई जा रही है। निदा खान की जो भूमिका है, वो भूमिका वहां पर जो लड़कियां टीसीएस में रिक्रूट की जाती थी उनको बहला फुसला कर यहाँ पर लाना था। उनकी जो निजी जानकारी है वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को वहां पर शेयर करना। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, उसमें भी कई तरह की चैटिंग वहां पर होती थी, धर्मांतरण को लेकर या फिर और अन्य तरीके की वहां पर चैटिंग हुआ करती थी। निदा खान ये एसआईटी के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर वो हाथ लगती है तो, और जांच वहां पर आगे बढ़ सकती है। फिलहाल निदा खान ने यहाँ पर नासिक के कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका, जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, वो वहाँ पर फाइल कर दी है। और जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, जो परिवार के जो सूत्रों से कुछ जानकारी मिली हासिल हुई है, बताया जाता है कि निदा वहाँ पर प्रेग्नेंट है और यहाँ पर उसकी याचिका कल सुनवाई के लिए रखी गई है। अब कोर्ट शायद उस पर कल सुनवाई कर सकता है और निदा खान के वकील वहाँ पर कल कोर्ट में निदा खान की तरफ से क्या वहाँ पर बयान देते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जो वकील होंगे वो उस अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के लिए और निदा खान को गिरफ्तार करने की मांग करने को लेकर वहाँ पर कई और खुलासे कर सकते हैं। तो बस अभी कल तक इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट में कल क्या होता है। लेकिन हाँ, निदा खान को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कोशिश यहां पर एसआईटी करती हुई नजर आ रही है और दूसरी जांच एजेंसियां भी उसे गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है। जी विनोद जी, देखिए, निदा खान एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कड़ी है क्योंकि जितने सारे अरेस्ट हुए हैं वो मेल है, वो और ये इकलौती फीमेल है इसमें इन्वॉल्व थी। तो क्या निदा खान के जो पास्ट रिकॉर्ड है इनकी भी जांच करी जाएगी? देखिए, अब तक एक ये अकेली एक्यूज नहीं है, दो एक्यूज है। एक महिला छिनानी नाम की जो एचआर जिसको बताया जाता है, उसको भी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं और पुलिस उसकी कस्टडी लेकर पूछताछ कर रही है। ये दूसरी आरोपी बताई जाती है, महिला आरोपी। कुल इसमें बताया जाता है कि 8 आरोपी हैं, उसमें से एक ये निदा खान है। जब उसकी गिरफ्तारी होगी तब उसके सारे एंगल की जांच वहां पर की जाएगी। हालांकि बताया जाता है कि जनवरी में ही, ये मामला सामने आने से पहले ही, उसने टीसीएस से इस्तीफा दे दिया था। उसने इस्तीफा कब दिया, उसने कंपनी में कब ज्वाइनिंग की, तब उसने किसके साथ मिलकर किसको रिक्रूट किया, उसकी भूमिका क्या रही है, क्या निदा खान ने टीसीएस में रहते किसी बाहरी देश में जाकर उसकी यात्रा भी की है, क्या किसी और देश में जाकर वहां पर वापस आई है क्या, इन सारे मामलों की अलग अलग एंगल से जांच वहां पर की जा रही है। तो एनआईए वहां पर जांच कर रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है, लेकिन ब्रेक थ्रू चाहिए तो निदा खान को गिरफ्तार करना जरूरी है और इसी दृष्टि से सारी जो प्रयास है वो जांच एजेंसियां करती हुई नजर आ रही हैं। मंत्री ने ऑपरेशन मॉड्यूल के बारे में जिक्र किया है आज एक चुनावी रैली पश्चिम बंगाल में। क्या सूत्रों से कुछ पता लग रहा है, क्या निदा खान का कुछ कनेक्शन था किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप से? देखिए, जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा स्टेटमेंट किया है तो उनके पास पुख्ता जानकारी होगी। और वैसे भी जब राज्य के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री होते हैं, उन्हें पुलिस रोजाना राज्य में जो चल रहा है और ऐसे बड़े मामलों की रोजाना वहां पर ब्रीफिंग उन्हें कराई जाती है। उन्होंने कहा कि संगठित ये मॉड्यूल लग रहा है और इसके तार कहाँ तक फैले हैं, उसके रास्ते कहाँ तक है, उसे ढूंढने की कोशिश चल रही है। जाहिर सी बात है, सीएम ने इतनी बड़ी बात कह दी तो ये संगठित ही मॉड्यूल है और उसी मॉड्यूल के तहत वहां पर जांच चल रही है और ये जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर जो और ज़्यादा जानकारी यहाँ पर एसआईटी और एनआई की तरफ से नहीं मिल पा रही है।
तो ज़्यादा जानकारी आती ही वो साझा की जाएगी। लेकिन हाँ, ये संगठित मॉड्यूल है, इस पर खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर हामी भरी है। जी विनोद जी, देखिए अगले 2 से 3 दिन में क्या बड़े डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस केस में? देखिए, इस केस में फिलहाल एनआईए जो अपने एंगल से जांच करेगी और वो क्या नई नई वहाँ पर बातें निकल कर सामने आएंगी, ये देखना होगा। जैसे मैंने आपकी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि निदा खान का पूरा एंगल वहाँ पर जांचा जाएगा। क्या कितने साल उसने वहाँ पर टीसीएस में नौकरी की, इससे पहले उसने कहाँ जॉब किया, इससे पहले उसके ऊपर कोई मामला दर्ज था क्या, क्या उसने विदेश यात्रा की थी क्या, इन सारे एंगल की जांच वहाँ पर की जाएगी। निधा के परिवार वालों से भी वहाँ पर जांच पड़ताल हो सकती है। उसके परिवार क्या किसी नेटवर्क के साथ कोई संबंध है क्या, ये भी वहाँ पर खंगाला जाएगा। और निधा की गिरफ्तारी के बाद ही ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल वो फरार है और उसने एंटीसिपेटरी बेल दायर कर ली है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, उसका नेटवर्क वहाँ पर पुलिस को नहीं मिल रहा है। पहले ये खबर आज सुबह आई थी, लेकिन वो उस खबर की पुष्टि किसी ने नहीं की। खबर ये थी कि निदा खान का जो लोकेशन है वो ट्रेस हो चुका है, लेकिन कोई लोकेशन वहाँ पर ट्रेस नहीं हुआ है। पुलिस जहाँ जा रही है और एसआईटी जहाँ जा रही है, उसको खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जांच एजेंसियाँ कह रही है कि जल्द से जल्द निदा खान को हम हिरासत में ले लेंगे और पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी वो हो सकती है।